Dear student, welcome to math class. In this video, we will discuss the same topic, that is permutation and combinations. That is my second video. And in this video, we will discuss about what is permutations and what is combinations. Now, what is permutations? Permutations mean the different arrangements can be made out of the group of things by taking some or all at a time are called permutations. Mean things मुझे given है, मुझे या तो कुछ लेनी है या सारी की सारी लेनी है, उनको लेकर मुझे जो अरेंजमेंट बनाना है, डिफरेंट अरेंजमेंट बनाना है, that is called permutation. Mean out of n things, if r are taken and the number of arrangement is called permutation. P mean permutation, n mean number of things are given, r mean r requirement. It means that is also NPR. Out of n, r things are taken where r greater equal to 0 and less than equal to n. r की जो वैल्यू है 0 या 0 से बड़ी है और n या n से छोटी है. Now, if n things are given and we are arranged out of these r things, mean मुझे n things given है, मुझे इनमें से r things को arrange करना है where r greater than 0 but less than equal to n. Mean NPR मुझे arrange करना है. अब arrangement क्या है? Different arrangement है. तो first पोजीशन के लिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या बनेंगे, नंबर ऑफ चॉइसेस क्या बनेंगी, टोटल कितनी आइटम्स हैं, n थिंग्स है ना. तो फर्स्ट के लिए मेरे पास क्या होगी, n चॉइस होगी. अब टोटल में से एक चला गया क्योंकि ऑल आर डिफरेंट है, तो बाकी कितनी बच गई, n-1. तो सेकंड पोजीशन के लिए n-1 चॉइस होगी, थर्ड के लिए n-2 चॉइस होगी. ऐसे कंटिन्यू चलते जाएं तो r के लिए हो जाएगी n-r-1. that is equal to n into n-1 into n-2 into n-r+1. अब we change this multiply into factorial. For that क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, n-r+1. मैंने क्या किया, n-r, n-r-1 up to 3 to 1 से मल्टीप्लाई किया और इसी से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 3 to 1. अब देखिए न्यूमरेटर में स्टार्ट कहाँ से है, 1 से 2 3 अप टू कहाँ तक जा रहे हैं, n तक, कोई ब्रेक नहीं है. इट मीन दैट बिकम n फैक्टोरियल. और डिनोमिनेटर में स्टार्ट कहाँ से है, 1 से कहाँ तक जा रहे हैं, n-r तक, तो क्या बन गया, n-r फैक्टोरियल. इट मीन NPR की वैल्यू ये होती है. नाउ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट और नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन n थिंग्स आर गिवन एंड टेकिंग ऑल एट ए टाइम. मीन n गिवन है और हमें सभी की सभी को लेना है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने बनेंगे, NPN. फर्स्ट पोजीशन फिल करने के लिए मेरे पास चॉइस कितनी है, n. दैट इज द नंबर ऑफ चॉइस फॉर फर्स्ट पोजीशन. अब टोटल कितनी आइटम थी, n थी, एक हमने ले ली क्योंकि डिफरेंट है. रिमेनिंग आर n-1, n-1 फॉर सेकेंड, n-2 फॉर थर्ड एंड दिस कंटिन्यू 3 2 and 1. सबसे लास्ट में एक आइटम रह जाएगी, 1 चॉइस 2 चॉइस एंड दिस. दैट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल n. नाउ व्हाट इज, बाद में चला लियो, रहने तो ना करो कमरे में जी, काम कर दो जी, बाद में कोई और कर लो, अंतर कर लो पहले जी. नाउ व्हाट इज NPR, that is equal to n factorial by n minus r factorial. Therefore, what is NPN? Mean
These are replaced by n, that become n factorial by n minus n factorial. What is npn? The value of npn is n factorial. That is n factorial, and that is equal to 0 factorial. It means 0 factorial equal to 1. The value of factorial 0 is 1. Now some examples. First one, what is the value of 7p2? Out of 7 things, 2 are arranged. The formula is 7 factorial by 7 minus 2 factorial. 7 into 6 into 5 factorial by 5 factorial. They are cancelled. Our answer is 42. What is NC? The second example, what is NP3? N factorial by n minus 3 factorial. That is equal to n minus 1, n minus 2 into n minus 3 factorial divided by n minus 3 factorial. The answer is n into n minus 1 into n minus 2. Now next example. These are the digits given 1, 2, 3, 7, 8, 9. Find the 4-digit number in which all the digits are distinct by using these digits. How many digits are there? There are 6 digits, and our requirement 4 digits. It means out of 6, 4 are arranged. That is equal to factorial 6 by 6 minus 4 factorial. 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 by 2 into 1. They are cancelled. That is equal to 360. The second way, how many positions are there? 4 positions. For first position, number of choices are 6. For second, 5, 4 and 3. That is equal to 360. That is the way for using permutation, and that is the way for using fundamental principle of counting for multiplication law. Next question. These digits are given 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8. Find a 4 digits odd number by using these digits and no digits be repeated. Mean all are distinct. मुझे repeat नहीं करना है. देखिए, now the number is odd. There are 1, 2 odd number are there. It means the number of choices for odd 2. All are distinct. It means 0 is not coming at this position. The number of choices for thousandth place. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Out of 6, 1 is already set. Remaining 5. Now total are 7. Out of 7, 2 are arranged. Now remaining 5. Out of these 5, 2 are taken. 2 are arranged. That is equal to 5 into 5 factorial by 3 factorial into 2. 5 into 5 into 4 into 2. That is equal to 200. The second method, how many digits? 1, 2, 3, 4. Number of choices for ones place, 2. Now out of these 7, 1 is arranged. Now out of remaining 6, 0 is not come at the thousandth place because the 4-digit number is there. So number of choices for that 5. Now out of 7, 2 are gone. Total 7 थे, कितने चले गए? एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, 2 चले गए, कितने बच गए? 5. इसका मतलब अगर इसके लिए 5 चॉइस है तो इसके लिए
4 है, क्योंकि डिजिट्स को रिपीट नहीं होना है। तो कितने बन जाएंगे ये 200। ये परमुटेशन वे से किया और ये मैंने किया मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से किया। नेक्स्ट एग्जांपल, मीन मुझे एक नंबर बनाना है कितने डिजिट का, 3 डिजिट का, और क्या हो वो, ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट हो। तो मीन वंस टेंस 100, मीन वंस पे यहाँ आ गया, टेंस पे आ गया, 100 पे आ गया, वंस टेंस 100। अब देखिए नंबर बनाना है मुझे 3 डिजिट का, और डिजिट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है, मीन डिफरेंट है। लेकिन जब मैं बनाऊंगा 3 डिजिट नंबर, तो यहाँ पर मेरे पास ये 100 प्लेस है, ये टेंस है और ये वंस है। नंबर ऑफ चॉइस फॉर 100 कितनी बनी, 6। अब टोटल थे 7, एक यहाँ चला गया, बाकी कितने रह गए 6, और फिर कितने रह गए 5, तो 180 बन गए। अब इसको हम करें परमुटेशन वे से करें, तो मीन द 100 प्लेस नंबर ऑफ चॉइसेस आर 6। नाउ the remaining digits are 6. Out of these 6, 2 are arranged, one for ones or one for tens. 6 into 6 factorial by 4 factorial, 6 into 6 into 5 into factorial 4 by factorial 4, that is equal to 180। ऐसे करें चाहे आप इसको ऐसे करें। नेक्स्ट एग्जांपल, how many words with or without meaning can be made by using the letters of the word Monday if no letter is repeated? If only 4 letters are taken, word क्या है, Monday है। कहता है कि मुझे इसमें से वर्ड बनाने हैं, चाहे उसका मीनिंग हो या मीनिंग ना हो, और रिपीट करना नहीं है, और इनमें से मुझे कितने लेने हैं, 4 लेने हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने लेटर टोटल हैं, 6, लेने कितने हैं 4, 6 पे 4 हो गया। इसको हम सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2, 6 into 5 into 4, 3, 2 और 1 by 2 into 1 कितना बन जाएगा, 360 बन जाएगा। इफ ऑल द लेटर आर टेकन, अब क्या करना है मुझे, सभी लेटर लेने हैं। इफ ऑल आर टेकन एट ए टाइम, मीन आउट ऑफ दीज 6 आर टेकन, देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट, that is equal to out of 6 are taken, that is equal to 6 factorial, that is equal to 720. Next, if all are taken but the first letter is a vowel, कहता है मुझे अब सारे लेने हैं लेकिन फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। मीन नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेगा, फर्स्ट के लिए कितनी चॉइस होगी, 1 और 1 2 चॉइस होगी। अब एक पोजीशन फिल होगी, टोटल मेरे पास 6 थी, अब बाकी कितनी रहेगी, 5 इंटू 5p5, 2 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, 2 इंटू 120, दैट इज इक्वल टू 240। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, वर्ड क्या है, मदर। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मदर इफ वी मेक डिक्शनरी बाय यूजिंग दीज लेटर्स। मीन अगर मैं इन्हीं लेटर्स का यूज करके एक डिक्शनरी बनाऊंगा तो मुझे ये बताना है कि डिक्शनरी में मदर का रैंक कौन सा होगा। इसके लिए क्या वे है, हम लोग डिक्शनरी देखते हैं ऑक्सफोर्ड की, वो 26 लेटर्स की है, लेकिन अपने पास लेटर कितने हैं, 6। मुझे इन 6 लेटर का यूज करके ही डिक्शनरी बनानी है और बताना है कि मदर का रैंक कौन सा है। इसके लिए पहला स्टेप है कि हम लोग इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं। तो पहला कौन आएगा, ई आएगा, फिर एच आएगा, फिर एम आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा और फिर टी आएगा। अब जैसे जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है, जैसे एम की रिक्वायरमेंट है, जब एम मैं लूँगा तो एम के लिए अरेंजमेंट नहीं होंगे,
मीन जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जब वो लेटर आएगा तो उसके लिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट नहीं बनते हैं, पहली कंडीशन। सेकंड, अगर मैंने कोई यहाँ लेटर लिखा जिसकी इधर रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, बाकी को अरेंज करेंगे। मीन जिसको मैंने यहाँ फिक्स कर दिया उसको टोटल में काउंट नहीं करना है, अदर्स को अरेंज करना है। तो फर्स्ट मुझे क्या चाहिए, एम चाहिए ना। तो एम से पहले कितने लेटर हैं, दो लेटर है। कौन कौन से, एक ई और एक एच। अगर मेरा पहला लेटर ई हो, मीन मैंने ई को फर्स्ट पे फिक्स कर दिया, तो बाकी कितने रह गए, 5 फैक्टोरियल। मीन अगर मैं फर्स्ट लेटर ई लेके चलूंगा तो 120 वर्ड्स बनेंगे जिसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, ई होगा। अगर नेक्स्ट मेरा लेटर अगर फर्स्ट एच हो तो भी तो 5 फैक्टोरियल बना। 120 किससे बने, एच से बने। उसके बाद कौन आ गया, एम। एम मुझे चाहिए, इसलिए एम के लिए मैं अरेंजमेंट नहीं करूंगा। एम के बाद मुझे क्या चाहिए, ओ चाहिए ना। लेकिन ओ से पहले कितने लेटर हैं, ई है और एच है। मीन एम ई होगा और एम एच होगा। अब देखिए यहाँ कितने लेटर आ गए, 2 आ गए। टोटल कितने थे, 6। बाकी रह गए फैक्टोरियल 4, 24। यहाँ भी फैक्टोरियल 4, 24। अब क्या आ गया नेक्स्ट, एमओ। एमओ मीन ओ को भी मैं काट दूं। नेक्स्ट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, टी। टी से पहले कितने हैं, एक आर है, एक एच है और एक क्या है, ई है। तो पहले लिखूंगा मैं एम ओ ई, फिर लिखूंगा मैं एम ओ एच, फिर लिखूंगा मैं एम ओ आर। यहाँ कितने हो गए, 3, तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल। 6 हो गया, 6 हो गया और ये 6 हो गया। नेक्स्ट क्या आ गया, वो एम ओ टी, टी को भी काट दें। अब नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे, एच। एच से पहले कौन है, ई, तो क्या बन गया, एम ओ टी ई। 4 आ गए, यहाँ पर कितना बच गया, 2 फैक्टोरियल, तो 2 आ गया। नेक्स्ट क्या है मुझे, एम ओ टी एच आ गया, एच भी कट गया। अब क्या चाहिए मुझे, ई। ई से पहले कुछ है नहीं, तो ई के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं। फिर क्या आ जाएगा, आर। तो एक लेटर क्या बन गया, सॉरी एक वर्ड क्या बन गया, मदर। तो मदर के लिए 1 लगा दें। अब इन सबको ऐड कीजिए, ये बन गए जी मेरे पास 288। 288 ये बन गए और इन सबको ऐड करके लिखें तो 309। मदर का रैंक कितना है, 309 है मेरा। नाउ नेक्स्ट टाइप, इफ n things are given and we taken all at a time, but out of these n, suppose p things, they are taken together, मीन n में से मुझे p things को इकट्ठा लेना है। then the number of arrangement, how many arrangements are there? Suppose the word is given daughter, DAUGHTER. How many letters in the word daughter? Total are 8 letters. Without any condition, the number of arrangement. Number of arrangements. Out of 8, 8 are taken, that is equal to 8 factorial, that is equal to 40320. Now, if all the vowels occur together, कहता है कि सारे वोवल्स क्या होने चाहिए, इकट्ठे आने चाहिए। अब सारे वोवल्स के लिए हम क्या करेंगे, इन वोवल्स को हम लोग एक पैकेट में इकट्ठा कर लेते हैं। दीज आर द 3 वोवल्स, और बाकी जो है अपन यहाँ ले देते हैं डी, जी, एच, टी एंड आर। अब मेरे पास क्या बन गए, 2 क्वेश्चन बन गए। फर्स्ट, पहले मैं इस पैकेट के अंदर लेटर्स को अरेंज करता हूँ। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, 3। इट मीन आउट ऑफ 3 आर अरेंज्ड, तो ये अरेंज हो गए। जब ये अरेंज हो जाए तो इस पैकेट के लेटर्स को इस पैकेट के लेटर्स को 1 लेटर काउंट करके इनसे साथ अरेंज करना है। 1 तो लेटर ये हो गया और 5 बाहर हैं, टोटल कितने हो गए, 6। इट मीन मुझे अब 6 लेटर्स को
अरेंज करना है, 6 लेटर आर अरेंज्ड, दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, दैट इज इक्वल टू 720 इंटू 6, 0 4320। अब नेक्स्ट पार्ट आ गया, इफ ऑल द वोवल्स डू नॉट अक्कर टुगेदर, मीन जितने भी वोवल्स है वो इकट्ठे नहीं आने चाहिए। ये कौन से केसेस हैं? विदाउट एनी कंडीशन, मीन कोई भी कंडीशन नहीं है, मीन इनका अगर हम अरेंजमेंट करेंगे तो टोटल अरेंजमेंट इतनी बनेगी। और ये कौन सी अरेंजमेंट है? जिनमें वोवल्स क्या आ गए? इकट्ठे आ गए। अब क्या करना है हमें? वोवल्स डू नॉट अक्कर टुगेदर, मीन इसमें से अपन इसको माइनस कर देते हैं, तो लिख देंगे नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ अरेंजमेंट 40320 40320 4320 0006 36। तो नेक्स्ट आता है कि वर्ड तो डॉटर ही है, इफ नो टू वोवल्स अक्कर टुगेदर, मीन इसमें मेरे पास वोवल्स मोर देन 2 गिवन है, और क्वेश्चन क्या है? नो टू वोवल्स अक्कर टुगेदर, कि 2 वोवल्स इकट्ठे नहीं आने चाहिए। इसके लिए क्या वे है? हम लोग पहले काउंट करेंगे हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर, तो 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट्स आर देयर। 1 2 3 4 5, it means the position for vowels 1 2 3 4 5 6, मीन्स 6 पोजीशन है वोवल्स की। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो वोवल्स इकट्ठे नहीं आते हैं, बट पोजीशन तो 6 है। हाउ मैनी वोवल्स आर देयर? ओनली 3 आर देयर, इट मीन आउट ऑफ 6 पोजीशन 3 आर फिल्ड बाय द नंबर ऑफ वोवल्स। नाउ द 5 कॉन्सोनेंट आर फिल्ड by 5 ways, 5p 5 ways, that is equal to 6 factorial by 3 factorial into factorial 5, 6 into 5 into 4 into factorial 3 by factorial 3, that is equal to 120. They are cancelled, that is equal to 120 into 120, 1400. The total number of ways 14400, in which no 2 vowels occur together. If n things are given, out of these n things we select R and we repeat any number any time, mean repetition यहाँ पर क्या होगी? अलाउड होगी। अब मेरे पास थिंग्स कितनी है? n है। अब देखिए फर्स्ट पोजीशन के लिए नंबर ऑफ चॉइस मेरे पास n होगी, लेकिन अब मुझे क्या है कि क्वेश्चन में कि रिपीटिशन अलाउड हो गई, इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे भी मेरे पास n चॉइस रहेंगी, और थर्ड पोजीशन के लिए भी क्या रहेंगी? n। इसका मतलब 3 पोजीशन कैसे फिल होगी? n रेज़ टू पावर 3 से हो गई। इस तरह कंटिन्यू चलते जाएं अप टू कहाँ तक? r टाइम्स तक, तो क्या बन जाएगा? n रेज़ टू पावर r बन जाएगा। मीन आउट ऑफ n थिंग्स r टाइम्स आर यूज्ड, इन विच the number, now it mean the number of permutation in which n things are given and we take r at a time if the repetition is allowed, that is n raised to power r. Next example, in how many way the 4 prizes be given to 3 students if a student is eligible for more than 1 prize, mean मुझे कितने prizes देने हैं? 4, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 3, और एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा प्राइज ले सकता है। तो फर्स्ट प्राइज टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, फर्स्ट प्राइज के लिए मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 3, मीन फर्स्ट प्राइज मैं 3 में से किसी को दे सकता हूँ, 3 चॉइस आ गई। सेकंड के लिए भी मेरे पास 3 चॉइस, थर्ड के लिए भी 3 और इसके लिए भी 3 रेज़ टू पावर 4 हो गई। इट मीन
इसमें क्या है कि रिपीटिशन अलाउड है। अब नेक्स्ट आता है टाइप, इफ एन थिंग्स आर गिवन एंड वी टेकन ऑल एन एट ए टाइम। इफ n things are given and all n things are taken at a time, out of these n, if r are identical, मीन इनमें से n में से r क्या हो, आइडेंटिकल हो, then the total number of arrangement। फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r। फैक्टोरियल n मीन टोटल जो हैं, फैक्टोरियल r मीन जो आइडेंटिकल हैं, जो रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें डिजिट्स या लेटर्स खुद ही रिपीट होंगे, उसके लिए अपन नंबर ऑफ अरेंजमेंट इस वे से बनाएंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन लिया मैंने, रूट। कहता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर द वर्ड रूट। अब रूट में कितने लेटर हैं, 4 लेटर्स आर देयर, तो 4 फैक्टोरियल तो हो गया, लेकिन 2 लेटर ऐसे हैं जो आइडेंटिकल हैं। कौन से हैं वो, ओ बाय फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 24 बाय 2 कितना आ गया, 12 आ गया। अब अगर वर्ड हो हरियाणा, तो टोटल कितने हो गए, 7 फैक्टोरियल, लेकिन इस 7 में 3a जो है वो आइडेंटिकल हैं बाय फैक्टोरियल 3। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और ये आ गया जी फैक्टोरियल 3। ये कैंसिल हो गए, 840, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मेरा वर्ड है मिसिसिपी। क्वेश्चन ये है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच ऑल आई डू नॉट अकर टुगेदर। कहता है कि मुझे नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताने हैं इसके अंदर कि जिसमें सभी आई इकट्ठे नहीं आने चाहिए। जब नोट अकर टुगेदर आता है तो क्या बनते हैं, पहले आप सॉल्व करते हैं विदाउट एनी कंडीशन, फिर हम सॉल्व करते हैं जिनमें वो लेटर इकट्ठे आ जाएं, फिर इन दोनों केसेस को आपस में माइनस कर लेते हैं। तो मेरे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, मीन विदाउट एनी कंडीशन, टोटल आर 11, identical, I identical 4 time, S also identical 4 time, and P 2 time. These are the total number of arrangement. Now if all the I occur together, mean हम क्या करेंगे, हम लोग I को एक पैकेट में बंद कर देंगे, बाकी बाहर क्या रह गए, M रह गया, SS रह गए, SS रह गए और PP रह गया। अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट, पहले अपन इस पैकेट वाले नंबर ऑफ लेटर्स को अरेंज करते हैं। कितने लेटर हैं अंदर, 4 फैक्टोरियल हो गया, एंड 4 ऑल द 4 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर बाय फैक्टोरियल 4। अब क्या हुआ, ये तो अरेंज हो गए। अब क्या करेंगे, अरेंजमेंट करने के बाद इसको 1 लेटर काउंट करना है, 1 लेटर ये है और 7 बाहर है, टोटल कितने हो गए, 8 लेटर हो गए। 8 लेटर बाय 4 S के लिए और 2 P के लिए। अब ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ गए व्हेन ऑल आई अकर टुगेदर। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हेन ऑल आई डू नॉट अकर टुगेदर, इट मीन नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर रिक्वायर्ड केस। मीन क्या करेंगे, 11 फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको यहीं छोड़ देंगे, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, these 7 digits are given in which 2 occur 3 times and 4 occur twice. Find a 7 digit number. क्या निकालना है मुझे, 7 डिजिट नंबर बनाना है इनका यूज करके।
1 2 3 4 5 6 7. Now the number of choice for this place 1 2 3 4 5 6, because if 0 come at this position then the number of digit are 6, मीन यहाँ पर 0 नहीं आएगा. फिर इसके लिए 6 5 4 3 2 और 1 डिवाइड किससे करेंगे हम 3 फैक्टोरियल से और 2 फैक्टोरियल से. व्हाट इज फैक्टोरियल 3? 6. कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया. कितना बन गया 360. Next question. The word again is given. Find the total number of arrangement. If these words are arranged to make a dictionary, then what is the 50th word? Mean जो इसके number of arrangement बनेंगे, अगर उनसे आप एक डिक्शनरी बनाएं तो उस डिक्शनरी का 50th वर्ड कौन सा होगा. मीन सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि इसकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी है. देखिए टोटल कितने हैं मेरे पास. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल और ए कितनी बार है 2. इट मीन 120/2 कितना आ गया 60 आ गया. टोटल वर्ड कितने बनेंगे 60 बनेंगे. अब इस 60 में से मुझे बताना है कि मेरा 50th वर्ड कौन सा होगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं. क्या बन गया A G I और क्लियर. अब अगर मेरा पहला लेटर ए हो, इसका मतलब ए को मैंने फिक्स कर दिया, बाकी कितने रह गए 4. फैक्टोरियल 4 मीन 24 वर्ड्स बनेंगे जिसका फर्स्ट लेटर क्या होगा ए होगा. अब सेकंड लेटर अगर मेरा जी हो तो बाकी जी को छोड़िए 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 हो गया, लेकिन ए 2 बार है फैक्टोरियल 2 आ गया. तो ये बन गया जी 12. 36 हो गए. अगर मेरा लेटर आई हो तब भी बनेगा फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 12. मीन 48 वर्ड आ चुके हैं. 50th वर्ड निकालना है मुझे. तो जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा एन से स्टार्ट होगा. एन आ गया. एन के बाद क्या आएगा ए फिर जी आएगा. ये मेरा कौन सा वर्ड है 49th. लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है 50th की. 50th के लिए क्या करेंगे हम लोग NAAIG मीन इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया. तो द 50th वर्ड इन द डिक्शनरी NAAIG आ गया. थैंक यू.